Hello everyone, welcome back to another chapter of history, chapter 6 Towns, Traders, and Craftspersons. In this chapter, we will learn about capital towns or administrative centers, temple towns, and pilgrimage centers, port towns, craft towns, and founded towns, traders, artisans, and craftsmen. Case studies of Hampi, Surat, and Masulipattanamu. A number of towns developed during the medieval period in different parts of India. These towns carried out important functions. They serve as capital towns or administrative centers, temple towns, pilgrimage centers, commercial towns, or port towns. Some towns combined many of these features. For example, Ajmer was both a religious and an administrative center. The city of Delhi was the main administrative center during the medieval period. It served as the capital city under many Indian kings and during the British rule as well. The places where the medieval rulers held court developed into towns and became the centers of administration. These were the capital towns or administrative centers. Delhi, Agra, Lahore, Tanjavur, and Hampi were some important capital towns. Many rulers built new capital towns, such as Fatehpur Sikri built by Akbar. Administrative centers. Tanjavur, the capital of the Cholas, was one of the example of an administrative center. The town was built on the bank of Kaveri River. The town was also known for Rajrajeshwara Temple, which was commissioned by King Raj Raja Chola. Kunja Ramalan Raj Raja Perunthacan was the chief architecture of the temple. Beside the temple, it was known for mandaps or pavilion. The Chola king used to hold the court in these pavilions. Nearby town, Urayur was known for its cotton industry and Sovamimallai for its bronze sculpture industry. मीडिएवल टाइम में टेम्पल के आसपास जब लोग रहते थे तब उसे टेम्पल टाउन कहा जाता था और जबकि उसके कोर्ट के इश्यूज को जहाँ पे काम करते थे उस जगह को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहा जाता था। कमर्शियल टाउन में टैक्स लगाना और कलेक्ट करना होता था। पोर्ट टाउन में जहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम होते थे। चोला डायनेस्टी का कैपिटल था तंजावुर, जो आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे कावेरी नदी के किनारे राजराजेश्वर टेम्पल बनाया गया जो शिव जी के ऑनर में था। वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया। इस टेम्पल को किंग राज राजा चोला ने बनाया। ये टेम्पल में जब घंटी बजती थी तो सबको सुनाई देता था, इसलिए इसका जो बनाने वाला आर्किटेक्ट था उनका बहुत प्रशंसा होती है। उनका नाम था कुंजा रामालन राज राजा पेरुनत्थाचन। टेम्पल के पास जो प्लेसेस थे उसे मंडप्स या पैविलियंस कहा जाता था। किंग इस जगह को यूज़ करते थे कोर्ट इश्यूज हैंडल करने के लिए। इसके अलावा आर्मी के लिए बैरक भी बनाते थे। बैरक मीन्स बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बनाते थे। सिटी में वाटर सप्लाई होता था वेल और टैंक के द्वारा। और यहाँ पे एक सलाइवा वेवर का एक ग्रुप था जो आया था तंजावुर और उरायूर से। ये लोग वो काम करते थे, कॉटन क्लॉथ को प्रोड्यूस करते थे। टेम्पल में जो फ्लैग के लिए फेस्टिवल के टाइम पे किंग और नोबल्स मीन्स हाई क्लासेस लोगों के लिए कपड़े बनाते थे। इसके अलावा तंजावुर से थोड़ी सी डिस्टेंस में एक और जगह है सवामीमल्लाई, जहाँ पे सतपतिस और स्कल्प्टर्स बनाया जाते थे। यहाँ पे ब्रोंज आइडल्स बनाए जाते थे। इसके अलावा मेटल लैम्प भी बनाया जाता था। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स. Temple towns were important centers of urbanization and led to development of cities, economy, and society. Temple towns represent a very interesting pattern of urbanization, the process by which new cities developed. Tanjavur is one such example of temple towns. The temples were central to the economy of these towns. They received land and money grant to carry out elaborate rituals and celebrate festivals by their patrons. They also got donation from pilgrims who used to visit these temples. The temple authorities in turn used this wealth to finance trade and banking.
Gradually, a number of craftspersons and traders in the town to cater the needs of pilgrims, and the town becomes an economic hub. So, pilgrims gave huge donations to temples. This wealth was used by temple authorities to finance their trade and banking. Some such important towns were Somnath, Madurai, Tirupati, Vrindavan, Ajmer, etc. तंजावुर टेम्पल टाउन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तंजावुर में अर्बनाइजेशन होने लगे, राज राजेश्वरी टेम्पल के आसपास लोग रहने लगे, सिटीज़ डेवलप होने लगे टेम्पल के आसपास, और ये सेंट्रल बन गया इकोनॉमी और सोसाइटी के। किंग के पास जो लैंड थी वो ग्रांट कर दिए उन लोगों के लिए जो लोग टेम्पल में काम करते थे, वो तीर्थ यात्री जो लोग आते थे उनके रहने के लिए, इन लोगों के लिए खाने के लिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। ब्रोंज ब्रोंज एक इलॉय है। इलॉय मीन्स दो मेटल मिला के बनाया जाता है, और ये कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है ब्रोंज। बेल जो होती है घंटा, जो उसमें आवाज़ आती है, क्यों? क्योंकि उसमें टीन की मात्रा ज़्यादा होती है कॉपर से, और इसीलिए उससे साउंड ज़्यादा आता है। लॉस्ट वर्क्स टेक्निक्स ये यूज़ किया जाता था चोला ब्रोंज स्टैचू बनाने के लिए। लॉस्ट वर्क्स टेक्निक में वॉक्स से पहले इमेज बनाया जाता था, उसके बाद उसे क्ले से कवर करके सूखने के लिए दिया जाता था। सूखने के बाद नीचे से टीनी होल बना के उसे हीट दे के मोल्टेन वॉक्स को बाहर निकाला जाता था, और उसके बाद मोल्टेन मेटल उसमें डाल दिया जाता था, और क्ले का वो शेप ले लेता था। जब वो कूल डाउन और सॉलिडिफाइड होने के बाद क्ले कवर को केयरफुली रिमूव कर दिया जाता था, और क्लीन और पॉलिश करके एक स्टैचू बनाया जाता था। आप पिक्चर में देख रहे हो इस तरह। लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स, जो लोग सेटल हो गए थे टेम्पल के आसपास, जिसकी वजह से उसको टेम्पल टाउन कहा जाने लगा। कुछ टेम्पल्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। भिला स्वामी, सोमनाथ इन गुजरात, कंचीपुरम एंड मादुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। कुछ पिलग्रिमेज सेंटर जो थे वो धीरे धीरे टाउनशिप में डेवलप हो गए, जैसे कि वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई इन तमिलनाडु आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। अजमेर इन राजस्थान, ये चौहान किंग्स के कैपिटल थे। बाद में ये मुगल के अंडर में आने के बाद यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना, जो मुस्लिम धर्म के लिए बहुत खास है। और अजमेर में पुष्कर लेक भी है जो हिंदू धर्म के लिए बहुत खास है। तो दो तरह की ये पिलग्रिमेज को दर्शाता है अजमेर। सो स्टूडेंट्स, द राज राजेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ड इन तंजावुर. Ajmer is associated with the Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti. Water was supplied to the city of Tanjavur from well and tanks. Towns grew around temples because they were administrative centers. They were also centers of commercial activities and craft productions. Temples' wealth were used to finance banking and trades by the temple authorities. In order to cater the needs of pilgrims, a large number of priests, artisans, workers, and traders settled near the temple, and slowly pilgrimage centers developed into township. A network of small towns. From the 8th century onwards, several small towns emerged from large villages. These towns usually had a mandapika or mandi or bazaar of later times, while local farmers to sell their produce. They also had several market street, hatta or hut lined with shops. Each street was known for a specific product or service. Usually, samantas or jamindar fortified these places and collect taxes for proper functioning of the town. Many villagers came to buy local articles and sell products like horses, camphor, saffron, betel, nut, spices, salt, etc. Normally, a Samanta was appointed who fortified the places and gave the right to collect taxes from traders and artisans.
8th सेंचुरी ऑनवर्ड जो लार्ज विलेज थे वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट होने लगे। हर विलेज में एक मंडी होती थी, मंडा पीका और मंडी, जहाँ पे दूर से पास से लोग आते थे सामान खरीदने और बेचने के लिए। इसे हाट भी कहा जाता था। यहाँ पे शॉप लाइन से लगी होती थी। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीशंस यहाँ पे मिलते थे, जैसे हॉर्सेस, सॉल्ट, कपूर, केसर, मसाले यहाँ बेचे जाते थे, खरीदा जाता था। सामंताज और जमींदार जो थे ये फोर्टिफाइड बनाया देते थे टाउन के पास, प्लेस जो रहते थे। फोर्टिफाइड क्या होते थे, वॉल लगा देते थे चारों तरफ और वहाँ पे टैक्स लगा देते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे। तो टैक्स किस पे लगते थे, ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिशंस के ऊपर, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। कभी कभी ये जो कलेक्ट करने की जो राइट है ये डोनेट कर देते थे लोकल टेम्पल के ऊपर कि आप लोग टैक्स कलेक्ट करो। टेम्पल उन्हीं के द्वारा बनाया होते थे या रिच मार्चेंट के द्वारा बनाया होता था। ये टैक्स की जो राइट है इसका कुछ इंस्क्रिप्शन आज भी सरवाइव होता है, जैसे कि राजस्थान में कुछ इंस्क्रिप्शन मिलता है कि उसमें टेम्पल अथॉरिटीज जो होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो सामान भी लेते हैं टैक्स में और कैश भी टैक्स में लिया जाता है। Traders, big and small, as traders had to pass through several kingdoms. They traveled in caravans and formed guilds to protect. There were several such guilds formed in South India from 8th century onward, such as Manigraman and Nanadesi. Chetiyars, Marwari, Oswal went on to become largest trading groups. Gujarati traders trade extensively with the ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China. They sold textiles and spices in exchange of gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese, blue pottery, and silver from Southeast Asia and China. Later, the spice trade between India and rest of the world is what attracted European traders to India. The west coast became home to Arab, Persian, Chinese, Jews and Syrian Christian traders. मिडिएवल पीरियड में बहुत सारे ट्रेडर्स आए इंडिया में। बंजाराज भी आए थे जो नोमैन होते थे। नोमैन क्या होते हैं, जो एक जगह पे सेटलिंग होते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और हॉर्स ट्रेडर भी आए थे जो नेगोशिएटेड करते थे, मतलब लेन देन करते थे, हॉर्स खरीदना बेचना। बंजारास और हॉर्स ट्रेडर जो थे ये लोग कैरावेन में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्योंकि कैरावेन क्या होता है, काफिला एक साथ, और मेनी किंगडम्स फॉरेस्ट पार करना होता था इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में। और क्योंकि ये लोग प्रोटेक्ट के लिए क्या करते थे, गिल्ड बनाते थे। बहुत सारे जो गिल्ड, गिल्ड मीन संघ, ये लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, जिसमें से ये गिल्ड का जो संघ था ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, जिसमें फेमस था मणिग्रामन और नाना देसी। इसके अलावा चेतियार्स, मारवाड़ी, ओसवाल, गुजराती ट्रेडर्स में कुछ कम्युनिटीज थे, जैसे हिंदू बानियास, मुस्लिम, बोहरार्स। ये लोग पोर्ट एरिया के द्वारा एक्सटेंसिवली ट्रेड करते थे। कौन सी पोर्ट, रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये लोग क्या करते थे, इंडिया से जो फेमस थे टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस ये लोग सेल करते थे और एक्सचेंज में रिटर्न लेते थे गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से क्या लेते थे, गोल्ड एंड आइवरी एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर। ये कहाँ से लेते थे, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से ये लोग रिटर्न लेते थे। इंडिया में जो स्पाइसेस थी ये बहुत सेल होती थी और ये इटालियन ट्रेडर्स के द्वारा यूरोप के मार्केट में बहुत हाई प्रॉफिट में बेचा जाता था। और ये कौन से मसाले थे, पेपर, सिनेमन, नटमेग, ड्राई जिंजर्स। ये मसाले कुकिंग में वहाँ के यूरोपियन के लोग बहुत पसंद करते थे, वो लोग यहाँ आ नहीं पाते थे। तो वेस्ट कोस्ट में जो वो रेड सी पोर्ट था उसके द्वारा अरब, पर्सियन, चाइनीज, यहूदी, सीरिया, क्रिश्चियन के जो ट्रेडर्स थे ये लोग बेचते थे इटालियन ट्रेडर्स को, और इटालियन ट्रेडर्स ये यूरोप के मार्केट में इसे प्रॉफिट में बेचते थे। कुकिंग के मसाले के साथ साथ कॉटन क्लॉथ भी बहुत अट्रैक्टिव थे इंडिया के, तो यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे, मसाले और क्लॉथ के लिए ये लोग इंडिया में आने लगे, जिसकी वजह से चेंजेस हुए फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स में।
लुक एट द बॉक्स, जहाँ पे काबुल के बारे में 2-3 बातें आपको जानना ज़रूरी है। काबुल जो है प्रेज़ेंट डे में अफ़गानिस्तान में है और काबुल और कांदाहार एक दूसरे से लिंक है सिल्क रूट के वजह से। इन द 17th सेंचुरी में जीन बैप्टिस्ट तावेरिनियर नाम के एक डायमंड मर्चेंट थे और 13,000 एनुअली वो अमाउंट कमाते थे हॉर्स से ट्रेड करके, हॉर्स को बेच के और खरीद के। कि उस टाइम पे ये 13,000 अभी आपके लिए बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होते थे। कैमल को यूज़ किया जाता था काबुल से बहुत सारे सामान लाने के लिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क, फ्रेश फूड्स। Students, small towns probably emerged from large villages. From the 8th century onward, there are several small towns in the Indian subcontinent. Usually, the local zamindar was given the right to levy taxes on the traders, artisans, and on the articles of trade. Sometimes the right to collect these taxes and the duty to look after the markets was given to the local temple authorities by the rulers. There were many kinds of traders, both big and small. There were traders called banjaras who moved with their families over long distances, transporting goods in caravans. The traders formed guild to protect. Manigraman and Nanadesi of South India were two famous guilds. The Indian traders trade extensively with the port towns. Indian spices and textiles sold in the Red Sea ports were taken by Italian traders to European markets, where they fetch very high profits. Students, watch and listen the video twice and try to understand the content properly.